Okay. Consider the following bromides A, B, and C. The correct order of SN1 reactivity is. ऑप्शन नंबर ए। So basically, what's the thought process in this? बावा में फर्स्ट अलाइंड, हाँ, देन ए एंड सी आर alkyl, but C is secondary and A is primary. perfect. So basically, the simple thought process is SN1 reactivity depends on stability of carbocation. So you have to just analyze the stability of carbocation, and the moment you have stability of carbocation, you have to remember Ba and Va. जिसमें we know that Va are useless carbocations. ठीक है? So you have to just identify the type of the halides over here. So this is a secondary allyl carbocation. This will be a primary alkyl, and even C is alkyl, but it is secondary. So सबसे बेस्ट कार्बोकेटाइन जो है इस ऑप्शंस में दैट विल बी बी फॉलोड बाय सी एंड ए. सो थॉट प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के रिलेटेड था. नाउ रिसेंटली मॉक में एक क्वेश्चन था जहां पर बेंजाइल के कार्बोकेटाइंस फॉर्म हो रहे थे, यानी बेंजाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड दिया था, एंड उसमें भी SN1 रिएक्टिविटी पूछा था. So here also you were supposed to analyze the stability of carbocation. So all the four options were forming a benzyl carbocation, but the groups attached to the para position were different. So tell me which group will be stabilizing the carbocation more over here? वापस Upper, EDG. EDG. So basically अगर मेरे पास यहाँ पर इस पैरा पोजीशन पे OH है, NH2 है, NO2 है और क्लोरो है. सो बेस्ट क्या होगा इसमें? NH2 NH2. ठीक है. नाउ देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग द डाउट्स कि जो NO2 ग्रुप है वो स्टेबलाइज करेगा एंड NO2 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. सो वो वाले स्टूडेंट से कंफ्यूजन ये किया था कि वो वाला जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज फॉर हेलो अरीन्स का रिएक्टिविटी, नॉट SN1. इनफैक्ट हेलो अरीन का जो SN रिएक्शन है उसको हम SNAR बोलते हैं, और SNAR की रिएक्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ what's the intermediate in SNAR? Carbanion. Stability of the carbanion. तो जो स्पीशीज कार्बनाइन को स्टेबल करेगा वो SNAR सबसे फास्ट करेगा. So that is the reason we had a nitro group attached to the ortho and para having the maximum reactivity for the SNAR. क्योंकि जब हम इसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं aqueous KOH, then reaction directly room temperature पे हो जाता है because the reactivity is quite high and it gives you a same famous product called what? Picric acid. Am I audible to everyone? Hello. यस सर हाँ, ठीक है. सो SN1 रिएक्टिविटी कार्बोकटाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, और हेलोअरीन में SNAR होता है जिसकी रिएक्टिविटी कार्ब अनाइन के ऊपर डिपेंडेंट है. और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कार्बोकटाइन को EDG स्टेबलाइज करता है और कार्ब अनायन को EWG स्टेबलाइज करता है. तो यहाँ पे NO2 या EWG ग्रुप्स फेवरेबल है, वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और SN1 में जस्ट कार्बोकटाइन का कॉन्सेप्ट यू हैव टू फॉलो. सो दिस डिफरेंस यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट. Next, when ethyl bromide reacts with AgCN followed by reduction with LiLH4 hydrolysis, the main product is. So firstly, there is an alkyl halide which is reacting with AgCN, famously giving you Alkyl isocyanide. isocyanide,
एंड साइनाइड और आइसोसाइनाइड के दो रिएक्शंस विच यू आर ऑलवेज सपोज टू रिमेंबर इज, क्या नाम था? HR. HR. H for hydrolysis and R for reduction with LiLH4 H3O plus. And the statements were isocyanide on hydrolysis give Primary amine and formic primary amine and formic acid. करेक्ट। तो यहाँ पर जो भी R है, R of the isocyanide, उसका corresponding primary amine बनेगा which will be CH3 CH2 NH2, that is ethylamine. Along with that we get another very important product, that is formic acid, and the reduction of isocyanide gives Secondary amine. that is R तो ethyl रहेगा, and you should say methyl secondary amine because this side the methyl is always fixed. जो भी R है वो copy paste करना है, but this particular alkyl is always fixed. तो ये हो गया AgCN का आंसर। तो क्लियर है ऑप्शन डी। अब जैसे ही आप आइसोसाइनाइड रेफर करते हो तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द साइनाइड का रिएक्शन ऑल्सो। सो वी नो दैट अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक KCN विल गिव यू साइनाइड। तो इथाइल का साइनाइड बनेगा, और उसके भी दो रिएक्शंस है जिसको HR बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन। अब रिडक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स Ester. एस्टर नहीं देता है, Acid. साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू RCOH। तो R तो कॉपी पेस्ट करना है और उसके आगे COH लगाना है। प्रोपियोनिक एसिड विल बी द आंसर, एंड साइनाइड का रिडक्शन गिव्स Amide. रॉन्ग Amine. रॉन्ग। साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स Primary amine. primary amine, because when you say amine your mind could think of primary, secondary or tertiary. Be specific to the statement. And if your R is ethyl, will the product be ethylamine? Propylamine. प्रोपाइल, सिर्फ प्रोपाइल बोलना गुना है। N-propylamine. Propyl. तो the RCN will give you RCH2NH2, तो एक CH2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, and this will be N-propylamine या प्रोपेन 1 amine. So basically अल्काइल हैलाइड के ये दो रिएक्शंस और उनके साथ HR रिएक्शन का जो सीक्वेंस है, that is very very important. Now AgCN और अल्कोहलिक KCN में the two products का reason was why KCN gives cyanide and AgCN gives isocyanide. Assertion reason में आया, तो what should be the reason? Ambident ligand. Superb. That's the answer. Cyanide ion acts as an ambident nucleophile. And ambident nucleophiles are those nucleophiles which have two attacking centers. तो यहाँ पर the cyanide ion can attack via carbon or nitrogen, resulting into two different products. So अब अगर ये strike होता है तो there was one more ambident nucleophile which I have discussed along with KCN AgCN. NO2. NO2 यानी नाइट्राइट वाला ग्रुप। सो नाइट्राइट में अगर ऑक्सीजन अटैक करता है तो अल्काइल नाइट्राइट बनता है, और नाइट्रोजन अटैक करता है तो देयर इज अ नाइट्रो अल्केन। अरे क्लियर? तो वो दो और रिएक्शन क्या थे? अगर पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है तो अटैक टेक्स प्लेस थ्रू Oxygen. एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज Rono. अल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा, और AgNO2 में आयन से अटैक होता है तो RNO2 बनेगा नाइट्रो अल्केन। So that is the summary for important reactions under nucleophilic substitution reaction of alkyl halide, NSR का concept. ठीक है? So
the thought process which you have for a particular reaction should be related to the topic. आप उस टॉपिक में घुस जाओ और उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, ट्राई टू रिकलेक्ट फॉर दैट सिंगल एमसीक्यू, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन आप करोगे तो ये वाला टॉपिक आपका परफेक्ट हो जाएगा। एक एमसीक्यू सॉरी एक मॉक में आपका एजेसीएन आया, नेक्स्ट टाइम मान लो केसीएन आया, उससे नेक्स्ट टाइम केएनओ2 आया, उससे नेक्स्ट टाइम एजीएनओ2 आया, मतलब आपने चारों मॉक्स के लिए एक टॉपिक के वेरिएशन को समझ लिया। And that is the best way to revise the organic reactions. Next, neopentyl chloride on treatment with aqueous KOH gives A and with alcoholic KOH gives B. What will be A and B? And what's the mechanism associated with them? A will be taught pentyl. That's because of rearrangement. Perfect. And alcoholic KOH में तो E2, so alkene. Answer should be B. B. Galat. Anyone else? P H में तो कैसे निकलेगा? Sorry, Sabia, come again. P होना तो E2 में, H में हो तो rearrangement होगा तो no reaction. हाँ, क्योंकि E2 में बीटा पे H होना जरूरी है, एंड E2 में एक स्टेटमेंट लिखवाया है, neopentyl halide does not undergo E2 due to the absence of beta H. It's a very famous statement which is already given. So let me revise this. neopentyl chloride का aqueous KOH, सबसे पहले ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो व्हाट मैकेनिज्म यू शुड थिंक? SN1. मतलब थियोरेटिकली प्राइमरी के लिए SN2 होना चाहिए, फिर भी ये SN1 क्यों अंडरगो करता है? Stable carbocation. नहीं, क्योंकि पहले जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो तो प्राइमरी बनेगा। हाँ, द करेक्ट रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी के बाजू में जो लगा हुआ ये ग्रुप है टर्शियरी, इट्स अ बल्की ग्रुप, and because of the steric reason, steric factor, SN2 won't be possible because SN2 में OH minus बैकसाइड से अटैक करता है, करेक्ट, और ये बैकसाइड से अटैक करने के लिए स्टेरिकली अनहिंडर्ड होना चाहिए, और नियोपेंटाइल प्राइमरी होते हुए भी काफी ज्यादा बल्की है, इसलिए इसमें बैकसाइड अटैक रूल्ड आउट है, एंड दैट इज व्हाई थियोरेटिकली होना चाहिए SN2, लेकिन दिस एक्चुअली अंडरगोज SN1 स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से। वे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट उसका मैकेनिज्म का पार्ट है, उसका रीजन नहीं है। सो अगर असर्शन रीजन में आता है, neopentyl chloride despite being primary undergoes SN1 with aqueous KOH, then the reason will be steric reason, steric factor, sterically hindered, इस टाइप के रीजंस को आपको देखना होगा। अब हैविंग अंडरस्टूड दैट, ऑफ कोर्स SN1 में यू शिफ्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो स्टेप 1 में वी फॉर्म अ कार्बोकेटाइन व्हिच विल बी प्राइमरी, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव टू थिंक अबाउट द रीअरेंजमेंट व्हिच विल अंडरगो वाया 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, और यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होने के बाद यू विल गेट अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन, and then there will be attack of the nucleophile OH minus forming a tert pentyl alcohol, which is also called tert amyl alcohol. Amyl or pentyl is one and the same. ठीक है, अब दूसरा, when you think of alcoholic KOH, immediate your mind should process E2 reaction and also अंडरस्टैंड दैट E2 रिएक्शन में बीटा पे H होना जरूरी है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। नो दिमाग मैकेनिज्म बोला था, तो अल्फा से Cl उड़ाना है, बीटा से H, लेकिन बीटा पे H है ही नहीं, इसीलिए इट फेमसली अंडरगोज नो रिएक्शन, ठीक है। E2 का एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर, इट्स अ ट्रांस एलिमिनेशन,
मतलब अगर कोई E2 रिएक्शन आपको साइक्लिक कंपाउंड में दिया जाए तो जो H और Br है दे मस्ट एलिमिनेट फ्रॉम द opposite side. ऑपोजिट साइड। ठीक है, एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस भी किया हुआ है कि मान लो आपके पास साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास Br है, H है, और यहाँ पे H है और फिनाइल है। ठीक है, तो इस केस में अल्फा वाला कार्बन तो ये है और बीटा वाला कार्बन ये है, और बीटा वाला ऑफ कोर्स ये वाला भी है जिसमें 2 H लगे हुए हैं, बराबर। नाउ एज पर द ट्रांस एलिमिनेशन विच बीटा पोजीशन का H विल बी फेवरेबल टू बी एलिमिनेटेड, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला, बिकॉज ऊपर वाले केस में क्या प्रॉब्लम है, अल्फा से Br तो निकाल रहे हैं और बीटा से H, लेकिन H ट्रांस होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द Br, लेकिन H है कैसा यहाँ पर ऊपर वाले में, सिस साइड पे है, सेम साइड पे है, इसलिए ये वाला H का पोजीशन फेवरेबल नहीं है, and that is why the H will be removed from this position, and with the alcoholic KOH double bond as expected ऊपर की तरफ ना होकर नीचे वाले बीटा कार्बन के साथ बनेगा, and phenyl will be a substituent over here, and the name of the compound will be 3-phenyl cyclopent 1-ene. 3-phenyl cyclopent 1-ene. So So can that you is so tell can you me. explain the trans elimination part again? ट्रांस एलिमिनेशन मतलब जो H और Br निकल रहा है ना, they must be on the opposite side. Okay, sir. The departing groups must be on opposite side. ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये Br और H एक ही साइड पे है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, Yeah. तो दैट इज वाई ऊपर वाला H अनफेवरेबल है टू बी एलिमिनेटेड। तो एज एक्सपेक्टेड डबल बॉन्ड जो यहाँ आना चाहिए था वो गलत है, we will get the double bond at the other beta position, and this will be the desired product. Clear? Yes, sir. So can you repeat the name of the compound, please? The 3-phenyl as a substituent, cyclopent 1-ene. Okay, yes, sir. अब नियोपेंटाइल के लिए एक स्टेटमेंट, does it undergo SN2? No. No, वो तो मैंने पहले ही रूल आउट कर दिया है। एंड does it undergo E1? Yes, it undergoes heat. यस। तो अगर मैं अल्काइल हैलाइड को हीट करके एक सॉल्वेंट के साथ यूज कर लो, तो द मोमेंट यू सी हीट यू हैव टू थिंक ऑफ E1. एलिमिनेशन, और क्योंकि ये स्टेरिकली हिंडर्ड है तो E1 करेगा, तो इधर भी यही कार्बोकटाइन बनेगा, यही रीअरेंजमेंट होगा। द फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ द E1 एंड SN1 आर सेम, ओनली डिफरेंस इज इन द लास्ट स्टेप, जहां पे इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा होगा और E1 में द लास्ट स्टेप विल बी Deprotonation. सुपर डीप्रोटोनेशन। तो उधर से ही मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, ये मेरा अल्फा कार्बन है, तो देयर आर 2 बीटा पोजीशंस। अब डीप्रोटोनेशन के लिए यू हैव टू थिंक ऑफ दो More पॉसिबिलिटीज है। हाँ E का कम हो उधर सब। हाँ, विच रूल इज दैट? Page Of course, the Sadzeff rule. You'll get CH3C, CH3, double bond CH and CH3, which will be 2-methyl butene, जो अपने ऑप्शंस में दिख भी रहा है, लेकिन वो अपना E2 प्रोडक्ट नहीं है, E1 प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो नियोपेंटाइल एज अ सबस्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू समराइज, it neither undergoes SN2 nor
E2. SN1 and E1 will be possible. ठीक है? So that is the summary for neopentyl substrate, which is very, very important. तो आंसर तो यहाँ पर सिंपल था, ऑप्शन सी। जो कंफ्यूजन्स है वो मैंने चारों केसेस करके बता दिया। Let's come to a question regarding acidic strength. Now, there are some students who told me that acidity का order जब आता है तो we are not able to identify the correct order. तो सबसे पहले मैं बता दूं, एसिडिक स्ट्रेंथ का मेन क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर से आता है, फिनॉल, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेंजोइक एसिड। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ के जो क्वेश्चंस है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के लिए आता है, यानी अमाइंस एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, यानी पाइरिडीन, पाइरॉल, पिपरिडीन, इनके रिलेटेड बेस का स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, तो ये 2 चीज आप समझ लो। जिन जिनको प्रॉब्लम है ये टॉपिक में, प्लीज रेफर द चैप्टर फिनॉल, बेंजोइक एसिड रिलेटेड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अमाइंस। ठीक है, लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अमंग द फॉलोइंग 4 compounds the acidity order is. So we are supposed to compare phenol, methyl phenol. What is methyl phenol? क्रेसॉल। नहीं, हाँ, methyl phenol is cresol. अब वहां पर ऑर्थो मेटा पैरा दिया नहीं है, तो लेट्स टेक पैरा क्रेसॉल। ऑफ कोर्स वो टाइपिंग एरर है, तो वो पैरा लेते हैं। उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, मतलब यू हैव द OH एंड द नाइट्रो एट मेटा एंड द नाइट्रोफिनॉल विद द पैरा पोजीशन। ठीक है, अब इसके कुछ स्टैंडर्ड ऑर्डर्स भी है जो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। पहला फिनॉल है। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट यू नीड टू अप्लाई? फर्स्ट कॉन्सेप्ट, चेक प्लस और माइनस आर। हाँ, मतलब EDG इफेक्ट जो है, EDG एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है एंड EWG एसिड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो उसके हिसाब से जो मिथाइल वाला ग्रुप है, दैट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड नाइट्रो वाला ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन अमंग द नाइट्रो, मान लो मैं तीनों केस कंसिडर करता हूं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। टेल मी हाउ डिड वी कंपेयर फॉर द सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स? क्या कॉन्सेप्ट लगाया था? Meta will be the least because on आंसर मत opening बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो। क्या किया था हमने ऑर्थो, मेटा, पैरा, सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए? रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट है। हाँ, आर और आई का आप एनालिसिस करो। नाउ द नाइट्रो ग्रुप हैज कौन सा रेजोनेंस? माइनस आर। माइनस आर एट ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑल द 3। मेटा तो फिर कैंसिल कर दूंगा। हाँ, ऑर्थो और पैरा पे ही रेजोनेंस होता है, मेटा पे रेजोनेंस लिखना गुनाह है, तो ये लिख के कैंसिल करो, मतलब नहीं पॉसिबल होता। एंड नाइट्रो व्हेन अटैच्ड टू द बेंजीन विल शो व्हिच इंडक्टिव? माइनस आई। अब ये कंबाइंड इफेक्ट EWG वाला है, तो ऑफ कोर्स EWG एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, अब रेजोनेंस जो है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, तो R से तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, सो I से करते हैं। तो I जितना पास उतना अच्छा, मतलब बेटर एसिड होना चाहिए। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एक फेमस एक्सेप्शन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से द एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
क्या हो जाता है? डिक्रीज या इंक्रीज? Decrease. डिक्रीज हो जाता है. सो अमंग ऑर्थो मेटा पैरा सबसे पहले कौन आता है? Para. पैरा, फिर ऑर्थो, ऑर्थो, और फिर मेटा. ये पूरा एनालिसिस है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, मतलब थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए. तो ऑफ कोर्स ये वाले ऑप्शंस तो फिर भी इजी थे क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो दिया ही नहीं है आपको. तो सबसे स्ट्रांगली एसिडिक होगा फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, फिर नॉर्मल फिनॉल फर्स्ट, एंड देन क्रिसॉल वुड बी लीस्ट. क्लियर है? अच्छा, किसी को एसिडिक स्ट्रेंथ के रिलेटेड इसके अलावा कोई डाउट कि ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं मॉक्स में, एंड अगर कुछ एनालिसिस किया है एंड इफ यू हैव सम डाउट्स कि कंसिस्टेंटली वो आंसर्स मेरे रॉन्ग जा रहे हैं, तो यू कैन आस्क. नथिंग? सर हाँ बोल. सर एक बार वो एक पूरा ऐसा कुछ एक्सेप्शंस का एक लिस्ट बना के दे दो ना, कौन से लाइक ऐसे वो जो ऑक्टाडाइन था, वैसे जो लोग थे मतलब नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है वो वाले एक्सेप्शंस Aromaticity जो. के लिए हाँ एक्सेप्शंस मतलब कोई एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर जिसमें वो नॉन प्लेनर हो जाता है, तो वो ऐसे लाइक जो एक इफ क्वेश्चन यू आया था. जस्ट रिफर द हकल्स रूल का पेज, उसमें कॉमन एग्जांपल्स के साथ मैंने साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जो कि एंटी एरोमेटिक दिखता है लेकिन नॉन प्लेनर है बिकॉज ऑफ इट्स टफ शेप, वो दिया हुआ है. तो एक टॉपिक का जो समरी है दैट इज ऑलरेडी गिवन. जैसा भी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये वाला एक्सेप्शन भी वेल नोन है, ठीक है, अचानक से एक्सेप्शन आ गया. यस यस. तो टॉपिक बाय टॉपिक. अब जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में कौन सा एक कॉन्सेप्ट सोचेंगे? सर इफेक्ट वाला. हाँ, ये एक्सेप्शन नहीं है, कॉन्सेप्ट है. और सर इफेक्ट का कंक्लूजन खाली याद हाँ. रखो, नीट के लिए आपको डिटेल तो जरूरी भी नहीं है, फिर भी मैंने डिस्कस किया है. तो सर इफेक्ट का कंक्लूजन है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, चाहे वो एडीजी है या एडब्ल्यूजी है, will become मोस्ट एसिडिक. मोस्ट एसिडिक. यही केस में अगर ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड आया, पता सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा आएगा? ऑर्थो वाला. नाइट्रो है ना. सबसे पहले ऑर्थो ले लेंगे, फिर पैरा मेटा में पैरा लेंगे, फिर मेटा लास्ट में. क्योंकि पैरा में आर और आई दोनों नेगेटिव है, और बाद में मेटा ओपीएम का ऑर्डर आएगा. ठीक है, तो ये यस सर. स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. Got it? यस सर. What I'm saying is, if you or if anyone is having problem with regards to acidic strength, please refer only two chapters, phenol and benzoic acid. There, I've given all the important examples का list, और उसमें आपको लगता है कोई एक्सेप्शन है तो उसका आप हाईलाइट करके नोट करके अपने अलग से बुक में लिखते जाओ. ठीक है. एंड एवरी मॉक के बाद प्लीज डू द एनालिसिस, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, विच आर योर वीकर पार्ट्स, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, और जो वीकर है उसको वापस रिवाइज करो, गो टू द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड रेक्टिफाई देम. सर मुझे एमटी जिसमें से डाउट था हाइड्रोकार्बन का, एक एम्बिगुअस क्वेश्चन था. ठीक है, भेज देना, आई रिप्लाई. ओके, नेक्स्ट वन. रिएक्शन ऑफ थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम methoxide प्रोड्यूसेस. कौन सा रिएक्शन? आरएक्स विद रोना रॉर देने वाला. आरएक्स प्लस रोना हमेशा रॉर नहीं देता है. प्राइमरी में खाली रॉर देता है. विलियमसन. हाँ, पहला थॉट प्रोसेस ये विलियमसन सिंथेसिस है, और विलियमसन सिंथेसिस फॉलोज SN2. SN2, और SN2 के लिए सबस्ट्रेट मस्ट बी
नॉन बल्कि। नॉन बल्कि, इस केस में अगर बल्कि सब्सटेट आया तो SN2 ना होकर इट विल अंडरगो E2 हो जाएगा, अल्किन बनेगा। E2 हो जाएगा, अल्किन बनेगा। परफेक्ट। तो अब अल्किन बनेगा, यानी अल्फा से Br उड़ाना है, बीटा से H उड़ाना है। ऑप्शन में एक ही अल्किन था, तो आप आगे कुछ ना करो तो भी चलेगा, आंसर डायरेक्टली बी मार्क कर सकते हो। क्लियर? अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर मुझे कोई टर्शियरी वाले अल्काइल का ईथर बनाना है, व्हाट इज द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन? ये टर्शियरी किसका होना चाहिए? टर्शरी अल्कोक्साइड का लेंगे। हाँ, और हैलाइड प्राइमरी लेना पड़ेगा। So the best combination or the only combination I can say is ethyl bromide reacting with tert butyl का alkoxide, जिसको tert butoxide बोलेंगे, that will give you the ether and NaBr. So this was the SN2 versus E2, जिसको मैंने एली सब का नाम दिया है। Elimination substitution always goes hand in hand. And the Williamson synthesis is the best example to understand ELISA. Competitive reactions है। Next, aryl halide is less reactive than alkyl halide towards nucleophilic substitution because less stable carbonium due to large CCl bond energy, inductive effect, resonance stabilization, and sp2 hybridization of carbon attached to halide. D. Red. D option. Now, ये similar question कुछ previous mock में आया था, जहां पर some of you had message कि इसका आंसर less stable carbonium भी होना चाहिए। इसका आंसर सिर्फ रेजोनेंस के ऊपर है। द मेन रीजन फॉर द अराइल हैलाइड्स बीइंग लेस रिएक्टिव देन द अल्काइल हैलाइड इज resonance and sp2 hybridization. So the most correct answer is only this. और फंडा क्या था कि हेलोअरीन में जो लोन पेयर है that comes in Conjugation with the benzene. conjugation due to which the CCl bond acquires a Partial double bond character. partial double bond character and जिसकी वजह से the bond is difficult to be broken. दूसरा रीजन, ये वाला जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ड्यू टू विच इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है एंड बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है। रीआइटरेटिंग द सेम रीजन कि बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी कम है टुवर्ड्स अल्काइल हैलाइड। एंड क्या बोला है? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं वो SNAR है, जिसमें कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। मतलब एक्चुअली ऑप्शन ए तो फेवरेबल ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि SNAR में मैंने अभी बताया द रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन एंड नॉट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। समझ में आ गया? अब इन अ वे बी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों रीजंस की वजह से CCl बॉन्ड का एनर्जी काफी बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बी और डी में सिलेक्ट करना होगा तो ऑब्वियसली मोर करेक्ट आंसर आपका डी ही होना चाहिए ना। यस सर। दैट इज रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी। अब इसी में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि SNAR को ज्यादा रिएक्टिव करने के लिए यू शुड अटैच EWG at orthopara because it stabilizes the कार्बन आयन। कार्बन आयन। तो फंडा रिलेट करो, आपको आंसर करेक्टली मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, among the following ethers which one will produce methyl alcohol on treatment with cold concentrated HI? ईथर Second का वाला। रिएक्शन HI के साथ। क्यों सेकंड है? अरे वो ब्यूटाइल वाला वो जो है स्टेबल कार्बोकैटायन बना के वो आयोडाइड बनाएगा और दूसरा वाला मिथेनॉल बना देगा। हाँ, नाउ इसका एक समरी बताता हूं। ईथर में ROR डैश जब HI कोल्ड के साथ रिएक्शन होता है
तो दो अलग मैकेनिज्म्स यहाँ पर फॉलो होते हैं। केस 1, अगर दोनों अल्काइल प्राइमरी या नॉन बल्की ग्रुप्स है, then it follows SN RN R डैश अगर दोनों ही नॉन बल्की है, ईथर का HI का दो रिएक्शन है और दोनों अलग मैकेनिज्म फॉलो करता है SN1 और SN2। तो केस 1 जब दोनों ही नॉन बल्की ग्रुप्स है, नॉन बल्की, तो इट विल फेवर SN2 SN2। तो अब उसका डायरेक्ट कंक्लूजन, छोटा वाला अल्काइल, छोटा वाला आयोडाइड, बड़ा वाला अल्कोहल। तो मान लो मैं आप बोलता हूं R ग्रेटर देन R डैश, तो R का बनेगा अल्कोहल, छोटा वाला अल्काइल R डैश का बनेगा आयोडाइड। ये था इसका फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस में अगर R और R डैश में कोई भी ऐसा अल्काइल है जो कार्बोकटाइन बना रहा है, ठीक है, मतलब R जो है कोई भी एक अल्काइल बा का कार्बोकटाइन बना रहा है, देन इसका रूल था कि जो भी कार्बोकटाइन बना रहा है दैट विल फॉर्म आयोडाइड वाला The halide. द हैलाइड, यानी आर आई के साथ जाएगा और दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट अल्कोहल बनाएगा। अब अगर ये कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गया है, तो केस 1 में एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है, लेकिन ये सेकेंडरी में सेक ब्यूटाइल है, तो क्या बनाएगा? अच्छा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 या SN2? Sec-butyl doesn't form that stable carbocation as per the Ba का order. बेंजाइल, अलाइल और अल्काइल में टर्शियरी वाला अल्काइल अच्छा कार्बोकेटाइन बनाता है। मतलब केस 1 SN2 फॉलो करेगा एंड उससे रूल क्या बोला कि छोटा वाला अल्काइल आयोडाइड बनाएगा और बड़ा वाला अल्काइल अल्कोहल बनाएगा, यानी जो So, सेक ब्यूटाइल ग्रुप है वो अल्कोहल बनाएगा। बोलो। but I had asked you one doubt. उसमें isopropyl था and isopropyl is equal to like sec propyl. So if you have to हाँ, choose between isopropyl and sec butyl, then sec butyl will be more stable, right? एक मिनट, उसके साथ क्या लगा हुआ है उसके ऊपर तेरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आइसोप्रोपाइल ऑक्सीजन और दूसरा क्या ग्रुप है। नहीं, आई अगर एम आस्किंग कि isopropyl ज्यादा स्टेबल है कि sec butyl वाला कार्बोकेटाइन? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इसमें 6 अल्फा है और इसमें 5 ही अल्फा होंगे, ये CH2 है, So if बेस्ड there's ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। isopropyl and another methyl group उसके बाजू में, तो isopropyl वाला will not form the halide ना because it is less stable. देख, सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों ही नॉन बल्की में आएगा, तो छोटा वाले का आयोडाइड बनाना है, दूसरे वाले का अल्कोहल बनाना है, दैट्स इट। हाँ, that's what I'm asking ना कि if it is stable then it forms the halide. So isopropyl का स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की is बात ही very नहीं है, stable. SN2 में क्यों स्टेबिलिटी सोच रही है? SN2 में there will be a nucleophile which will attack the छोटा वाला अल्काइल, इसलिए रूल बना छोटे का आयोडाइड बनाना है, बड़े का अल्कोहल। तो स्टेबिलिटी सोच मत यहाँ पर। Okay. If there is any alkyl which forms the Ba का stable carbocation, meaning a benzyl, allyl और any tertiary वाला alkyl, tert butyl, tert pentyl, तो ही उसका आयोडाइड बनाना है और दूसरे का अल्कोहल बनाना है, which will be via the second case mechanism. सेक प्रोपाइल और सेक ब्यूटाइल दोनों ही अच्छे कार्बोकेटाइन नहीं है, मतलब दोनों के लिए आप SN2 सोचोगे ना कि SN1। समझा? Yes, sir. तो अब केस 2 में यानी बी वाले ऑप्शन में क्लियर है हमारे पास कि एक अच्छा कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो इसका ही आयोडाइड बनेगा और दूसरे का अल्कोहल बनेगा। So this is the combination which will give you methyl alcohol. अब बाकी में वही दो प्राइमरी वाले केस है, छोटे वाले का आयोडाइड, मतलब सी ऑप्शन में भी मिथाइल का आयोडाइड बन रहा है
और यहाँ पर भी मिथाइल का आयोडाइड और दूसरे वाले का अल्कोहल बन रहा है, दैट्स व्हाई यू रूल आउट ACD। समझा? सर फर्स्ट वाला SN2 क्यों है? बिकॉज दोनों तरफ ऐसे अल्काइल है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना रहे, या फिर प्रिसाइसली आप बोल सकते हो कि दोनों नॉन बल्की है। सेक ब्यूटाइल कांट बी कंसिडर्ड टू बी दैट बल्की एज कंपेयर टू अ टर्शियरी। ओके गॉट इट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, एनीसॉल reaction with HI will always give फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड। नो मिथाइल आयोडाइड। because कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला जो बॉन्ड है that is very रेजोनेंस डिफिकल्ट टू स्टेबल। ब्रेक। difficult to break, इसीलिए HI चाहे हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करो या कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करो, इसमें हमेशा फिनॉल बनेगा एंड मिथाइल आयोडाइड ही बनेगा। दैट इज द स्टैंडर्ड आंसर। HI whether cold या hot condition दिया doesn't matter, very important for the anisole HI reaction। Next, which of the following has maximum boiling point? अब ये क्वेश्चन आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, और उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड मैंने एक थॉट प्रोसेस दिया है। सबसे पहले, अगर चारों कंपाउंड अलग फैमिलीज के हैं, देन व्हाट कॉन्सेप्ट यू नीड टू थिंक? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। And among the intermolecular forces of attraction, the strongest is हाइड्रोजन बॉन्ड। H bond followed by, डीपी and then वैंडरवाल्स। van der Waals। अगर फैमिली ऑफ कंपाउंड सेम है लेकिन कार्बन अलग है, मोलार मास से प्रोपोर्शनल। मोलर मास। मोलर मास से प्रोपोर्शनल, मतलब मोर द कार्बन मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। फैमिली सेम है, कार्बन भी सेम है, लेकिन उसके आइसोमर्स है, बीडीबी। तो इनवर्स टू द ब्रांचिंग। ये एक छोटा सा सीक्वेंस है जो आप फॉलो करोगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट के कोई भी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो YRKT BDP दिया है बस वही डायरेक्टली सोच लेते हैं, उनका थॉट प्रोसेस सीधा BDP पे जाता है, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर कंपाउंड्स अलग फैमिली के हैं तो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में व्हाट इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? एक खाली क्लोराइड और 3 अलग एक ही है। करेक्ट, एक क्लोराइड है और 3 अल्कोहल्स है। इनफैक्ट लास्ट वाला तो ग्लाइकॉल है ना। यस सर। अब हैलाइड वर्सेस अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका स्ट्रॉन्ग? अल्कोहल का। हैलाइड रूल आउट हो गया, हमें मैक्सिमम ढूंढना है। अब अमंग द अल्कोहल्स मेरे पास एक ग्लाइकॉल है और बाकी 2 अल्कोहल है, किसका ज्यादा होगा? ग्लाइकॉल का ज्यादा। बिकॉज ग्लाइकॉल में डुअल H बॉन्ड्स बनेंगे दोनों OH के थ्रू, एंड दैट इज व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और अगर B और C में कंपेयर करना है तो बी का ज्यादा होगा सी से। रीजन बीडीबी का ही। BDP, क्योंकि दोनों प्रोपाइल के आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम्स है तो ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो करो, यू विल गेट योर आंसर्स करेक्टली। नेक्स्ट, सर बीडीपी का रीजन क्या था? सरफेस एरिया। तो देख, अगर मेरे पास N ब्यूटाइल का अल्कोहल है वर्सेस थर्ड ब्यूटाइल का अल्कोहल है, which will occupy a large surface area? एन ब्यूटाइल। ठीक है, बिकॉज कार्बन का चेन 4 का है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, उसके सरफेस फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, और उसको बॉईल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तो मतलब वैंडर वाल्स फोर्सेस। हाँ, मतलब H बॉन्ड्स तो दोनों में है क्योंकि OH तो है ही ना,
बट कार्बन हाँ वाले केस में आपको वेंडर वॉल्स को सोचना है, जो कि सरफेस एरिया डिपेंडेंट है। एंड मोर द ओके सर सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्गर द वेंडर वॉल्स, हायर द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जैसे हम ओके सर प्राइमरी से टर्शरी पे जाते हैं, तो ब्रांच क्या कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट को कम कर रहा है। समझा? दैट इज वाई ये ट्रिक बनाया बीडीबी का। ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। एज अ रूल, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। राइट? चलो आगे। Following compounds are given, and which of the above compound on being warmed with iodine and NaOH will give iodoform? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। Undoubtedly बहुत क्विकली आना चाहिए, बिकॉज आयोडोफॉर्म के 6 चीजें मैंने आपको दी हुई है। आयोडोफॉर्म इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन। ऐसा नहीं, मैंने कुछ दिया है। आयोडोफॉर्म इज गिवन बाय इथेनॉल, इथेनॉल, अल्केन टू ऑल इथेनॉल, इथेनॉल, अल्केन टू ऑल, अल्केन टू ओन, फिर और भी था। फिर मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल, मिथाइल कीटोन्स। नहीं, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल ही अल्केन टू ऑल है, और मिथाइल कीटोन्स अल्केन टू ओन है। एरोमेटिक का एक एसिटोफेनॉल एग्जांपल, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन और उसका करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल। So I repeat again, iodoform is given by ethanol, ethanol, alkane two-on, which itself is your methyl ketone, लेकिन aliphatic वाला alkane two-ol, which itself is methyl secondary alcohol, aliphatic वाला। क्यों aliphatic बोल रहा हूं? Because अगर मेरे पास फिनाइल के साथ methyl keto है, तो उनका नॉमेनक्लेचर टू ओन नहीं आता है, उनका नॉमेनक्लेचर वन ओन में आता है। इसलिए अलग से मैंने एसिटोफिनोन बताया था, राइट? यस सर। एंड उसका सेकेंडरी अल्कोहल विल बी फिनाइल विद CHOH CH3। ये लिस्ट अगर आपको याद है, तो आयोडोफॉर्म की कोई भी क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर सकते हो। रही बात इसके प्रोडक्ट्स का, YRKT का, तो अगर मेरे पास मान लो फिनाइल कीटोन है, एसिटोफिनोन, और वो I2NaOH के साथ रिएक्ट किया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स? CHI3 बन जाएगा और इसका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। हाँ, बेंजोएट सॉल्ट बनेगा, क्योंकि अल्कली है। अगर एसिड से, डाइल्यूट HCl से एसिडिफाई करोगे तो बेंजोइक एसिड। ये याद रखना, इसमें भी वो लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्ट्स जो मैंने बोला था, कि जो मिथाइल वाला ग्रुप है, दैट इज ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म और द हेलोफॉर्म। एंड जो R वाला पार्ट है, दैट विल ऑलवेज गिव यू द सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, which will be CONA। आगे अगर इसका डाइल्यूट HCl किया, तो एसिडिफाई होकर फिर वो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो डू नॉट से बेंजोइक एसिड, अगर एसिडिफिकेशन होगा तो ही बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये है यस। पूरे आयोडोफॉर्म का सिंपल समरी। एंड व्हाट इज I2NaOH इक्विवेलेंट टू विच रिएजेंट? NaOI भी होता है। हाँ, सोडियम हाइपोआयोडाइट, या फिर क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकते हैं, हेलोजन अल्कली। इसको मिलकर जो मिलता है, वो है CaOCl2 कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर। तो I2NaOH या क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या NaOI या CaOCl2, all are simply the reagents for haloform reaction. Everywhere there is summary of the important things which is being given, refer it properly. So what I am discussing is एक particular MCQ में कौन सा concept आया, और उस concept के related in out सब कुछ मैंने बता दिया। इससे फायदा क्या होगा, कि आज मॉक में मान लो सिंपल आयोडोफॉर्म कौन कौन देता है वो आया, अगले मॉक में
आयोडोफॉर्म रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आपको पूछा, जैसे एसिटोफिनोन ऑन I2NaOH गिव्स व्हाट, A and B, तो आपको अब वो भी क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। तो रिवीजन जब करते हो और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, तो उस क्वेश्चन का टॉपिक देखो, उस टॉपिक का इन एंड आउट एनालिसिस करो। ठीक है, तो इस केस में ऑफ कोर्स खाली 4th वन रूल आउट है, आंसर तो डायरेक्ट था ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब ये वाला रिएक्शन भी काफी लोगों ने डाउट पूछा था और पहले आया था। There's a phenol with ethyl iodide and ethoxide is taken in excess, dissolved in anhydrous ethanol. The major product will be, what is the expected product? करेक्ट आंसर किसको पता है? बी होता है, I think। हाँ, आंसर बी है। और काफी लोग का मिस्टेक होगा कि आंसर ए होना चाहिए, विच इज रॉन्ग। अब बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहले जो इथॉक्साइड दिया हुआ है इन एक्सेस, व्हाट इज द रोल ऑफ इथॉक्साइड? Ethoxide is a very Strong base. of course. Ethoxide is alcoholic KOH के equivalent and that acts as a strong base. अब वो बेस क्या करेगा? फिनॉल के एसिडिक H को एलिमिनेट कर लेगा। तो फिनॉल अगर बेस के कांटेक्ट में आता है, इट इमीडिएटली गिव्स यू फिनॉक्साइड आयन। हाँ कि नहीं? ये ग्रैब करेगा H प्लस को और इथेनॉल बना देगा, यहां पर बन जाएगा फिनॉक्साइड। Now this phenoxide will act as a source of nucleophile और वो न्यूक्लियोफाइल इस आयोडाइड के न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। इसीलिए द आंसर शुड हैव बीन ए। बट द प्रॉब्लम इज इथॉक्साइड उन्होंने बोला है इज टेकन इन एक्सेस। तो अब कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होता है कि दो न्यूक्लियोफाइल्स मेरे रिएक्शन के अंदर है और इसका कॉन्सेंट्रेशन फिनॉक्साइड से कहीं गुना ज्यादा है। इसकी वजह से दिस विल फेवर बिकॉज ऑफ डोमिनेंस and will substitute the I to give you diethyl ether as the product, not phenitol. ऑप्शन ए जो दिख रहा है उसको फेनिटॉल बोलते हैं, एनिसॉल का भाई है फेनिटॉल। क्लियर है? Yes, sir. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। Next, glyoxal on warming with 50% NaOH forms. Sodium glycerate. Glycerate. ग्लाइकोलेट था। 50% NaOH, कौन सा रिएक्शन? Canizaro. और स्पेसिफिक बोल। Intramolecular Canizaro. इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है। तो एक अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होगा, दूसरा अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट बनाएगा और यही कंपाउंड को सोडियम ग्लाइकोलेट बोलते हैं, which is again given in the synopsis, glyoxal का इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। अब एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, अल्डिहाइड या कीटोन और एरो पे आपको अल्कली का कोई भी रिएक्शन दिया हो तो यू शुड थिंक ऑफ Aldol. ऑलवेज Canizaro. अल्डोल कैनिजारो एंड ACH, अल्डोल कैनिजारो हेलोफॉर्म। अल्डिहाइड कीटोन का अगर सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है और अल्कली के साथ रिएक्शन है तो हमेशा थिंक ऑफ 3 रिएक्शंस, अल्डोल कैनिजारो या हेलोफॉर्म। अब ऑफ कोर्स हर एक रिएक्शन का कंडीशन है जो दिया हुआ है कि अल्डोल होने के लिए यू मस्ट हैव Alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन, कैनिजारो होने के लिए देयर शुडंट बी Alpha hydrogen.
और हेलो फॉर्म तो ऑलरेडी बता दिया है। अब इसका एक स्टैंडर्ड जो एग्जाम्पल है वो क्लोरल का है। अगर क्लोरल है और OH माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अल्फा H ना होने की वजह से ये कैनिजारो करना चाहिए, बट फिर भी बिकॉज ऑफ द CCl3 it actually favorably forms क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम फॉर्मेट। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन कर जाता है। समझा? तो थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करो। इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, अबाउट व्हाट रिएक्शन टू अप्लाई, देन उस रिएक्शन के अंदर कौन से कंडीशन को सोचना है, वो सारा इन आउट समरी आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके ये टाइप के क्वेश्चंस आप क्रैक कर पाओगे। Sir, can you explain chloral reaction again? So chloral is basically a compound which is trichloroacetaldehyde, CCl3CHO। ठीक है? अब थियोरी के हिसाब से इसमें कोई अल्फा H नहीं है, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी अल्कली के प्रेजेंस में वो कैनिजारो रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है? लेकिन बिकॉज ऑफ द 3 क्लोरो there is a favorable haloform reaction which can occur over here. That's why कैनिजारो ना करके ये haloform reaction करता है, which gives you chloroform and sodium formate as the product. Clear? Yes, sir. So, हाँ, so in aldol condensation, the substrate was selected based on null reactivity, no? हाँ। So how to select that substrate? Can you just show an example? Basically what you are asking is about the cross aldol condensation. तो मान लो आपके पास एसिटाल्डिहाइड और प्रोपियोनल्डिहाइड है, बोथ कंटेनिंग द अल्फा H। इसके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं? हाँ, 4, 4, 2 सेल्फ अल्डोल और 2 क्रॉस अल्डोल। ठीक है? और सेल्फ वर्सेस क्रॉस में द मेजर प्रोडक्ट वाज क्रॉस। क्रॉस। लेकिन 2 क्रॉस में से भी कौन सा फेवरेबल है, दैट विल बी डिसाइडेड कि कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा रिएजेंट है। अब इसके मैकेनिज्म के ऊपर अगर बात करें तो अल्डोल रिएक्शन इज अ नार मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है? सो उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में फंडा क्या था कि जब बेस अटैक करेगा तो वो अल्फा के H को जो एसिडिक है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा and will result into formation of a first step is base catalyzed H plus abstraction to form a अल्डोल का मैकेनिज्म भूल गए क्या? पहला अल्फा के H प्लस को बेस निकालता है, तो जब H प्लस जाता है तो कार्बन विल एक्वायर negative charge, to form a carb अनायन। anion, anion। ये कौन सा कार्बन आयन बन रहा है? प्राइमरी। प्राइमरी। और यहां से अल्फा H को निकाले तो कौन सा कार्बन आयन बनेगा? Secondary. And primary versus secondary, which is better carbon ion? primary, प्राइमरी 1 2 3 का ऑर्डर है। अब जब मैकेनिज्म बताया था तो मैंने बोला था कि अल्डोल में 2 रिएक्टेंट्स है, एक को बोलो सबस्ट्रेट और दूसरे को रिएजेंट। सबस्ट्रेट में अल्फा H होना नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, लेकिन रिएजेंट में अल्फा H होना जरूरी है, बिकॉज वही तो कार्बन आयन बनाता है और वही अटैक करता है सबस्ट्रेट के डेल्टा प्लस कार्बन के ऊपर। बराबर? तो इन दोनों में द फेवरेबल न्यूक्लियोफाइल और द कार्बन आयन इज प्राइमरी, तो मेरा रिएजेंट बनेगा
एसिटल्डिहाइड क्योंकि उसका न्यूक्लियोफाइल या कार्बन आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबस्ट्रेट को आप बना दोगे प्रोपियोनल्डिहाइड. सो द मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय propionaldehyde becoming the substrate and acetaldehyde becoming the reagent. Clear? Asim? Yes, sir. अच्छा, having understood this, मान लो अगर aldol condensation का डायरेक्ट प्रोडक्ट मांगा है तो इसका भी एक YRKT दिया था. Oxygen from the first alpha hydrogen to hydrogen from the second. करेक्ट. सबस्ट्रेट का ऑक्सीजन निकाल और इसका 2 अल्फा H निकाल एंड लेफ्ट टू राइट ज्वाइन कर. तो द डायरेक्ट प्रोडक्ट इज CH3 CH2, O निकालने के बाद CH, डबल बॉन्ड के साथ यहां से H2 निकाल दो तो यहाँ CH और CHO. एंड ऑब्जर्व करेंगे तो अल्डोल कंडेंसेशन में खास ऑब्जर्वेशन इज इट इज एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन व्हिच इज स्टेबल बाय रेजोनेंस. तो ये हो गया अल्डोल का इंपॉर्टेंट समरी. और कोई डाउट अल्डोल कैनिजारो हेलो फॉर्म में? यू आर नॉट एबल टू क्रैक क्वेश्चंस ऑन देम? Okay. Next, carbonyl compound react with dash to form a Schiff's base. RNH2. D option. Primary amine. तो यहाँ पर this was the reaction with ammonia derivatives, जिसका एक list of compounds है जो आपको याद रखना है, जिसमें last वाला काफी important था, wherein the carbonyl was reacted with H2NCONH2 called Semicarbazole. semicarbazide. Azide, sorry. H2NNHCONH2. ठीक है. अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि जो H2 निकालना है वो लेफ्ट वाला NH2 का निकालना है कि राइट वाला? तो आंसर क्या था? लेफ्ट वाला. बिकॉज ये वाला जो NH2 है उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन रेजोनेंस. इसीलिए यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द NH2 which is bonded to N, not to the carbonyl. And left to right जब ये प्रोडक्ट बनता है, एसिडिक मीडियम pH equal to 3.5 का कंडीशन था, it was called semicarbazole. ये भी PYQ में आ चुका है. Okay? Acetaldehyde reacts with HCN base to form a compound X, which on hydrolysis form Y. Compound Y has how many stereoisomers? Famous sequence है. Acetaldehyde with HCN will form Cyanohydrin. cyanohydrin, and cyanohydrin का hydrolysis will give Lactic acid. और लैक्टिक एसिड में एक ही कायरल कार्बन है तो कितने स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे? 2. That's it. ये था आंसर. अच्छा, any doubts in stereoisomerism as a concept? डाउट्स है तो पूछो. ये सिर्फ लेक्चर अटेंड करने के लिए, टाइम पास के लिए मत आओ. ये लेक्चर में एक्सप्लेनेशन से ज्यादा आपके डाउट सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर जस्ट trying to attend the lecture, you are not going to gain anything. This is the time where you should resolve your doubts. कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का MCQ आ रहा है, मुझे ये सॉल्व करने नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे तो आपका फायदा होगा, rather than me discussing just the concepts again and again. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा. सो अगर मैंने कोई टॉपिक एक्सप्लोर किया है तो प्लीज डाउट्स पूछो कि मुझे स्टीरियो में ये पार्ट में डाउट है, तो आई कैन एक्सप्लेन यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. Next, synthesis of 3-octane is achieved by adding a bromoalkane into a mixture of sodium amide and an alkyne. So bromoalkane and alkyne respectively are
इसका फंडा पहले बता देता हूं कि अल्काइंस में जो टर्मिनल अल्काइंस है दे वर फेमसली Acidic. acidic, and being acidic they can be treated with the base to form the acetylate salt. और ये जो सॉल्ट है उनको अगर हम अल्काइल हैलाइड R डैश NaX निकाल के कंबाइन करें तो it will give you another alkyne. So basically this reaction very famously converts a terminal alkyne into a non-terminal non-acidic alkyne. एंड जो भी अल्काइन है वो R और R डैश कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट करना है. अब R इज कमिंग फ्रॉम द टर्मिनल अल्काइन एंड R डैश इज कमिंग फ्रॉम द हैलाइड. वही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर पूछा है. तो बेसिकली दैट कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वल टू 8 कार्बन एंड द ट्रिपल बॉन्ड शुड बी एट द थर्ड पोजीशन. अगर थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो मेरा R हैज टू बी कितने कार्बन का? अगर ट्रिपल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे लाना है तो मेरा R कितने कार्बन का होना चाहिए? इतना मुश्किल है रे ये क्वेश्चन. गधे लोग. ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अगर मुझे थर्ड कार्बन पे चाहिए तो मेरा R कितने कार्बन का होना चाहिए? 2. इतना क्या टाइम लग रहा है? और रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो आई बेटर नॉट टेक द लेक्चर्स इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड. इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड. रिस्पॉन्ड करते जाओ. So R should be of 2 carbons and the R dash should be of the remaining 4 carbons, and that will be the combination to actually form the 3 octane. तो पहला कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो यू हैव 5 कार्बन एंड 4 कार्बन. तो ये तो 9 का कॉम्बिनेशन हो गया, रूल्ड आउट. फिर 3 एंड 5, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है तो 3 आइन तो मिलेगा नहीं. फिर ये भी फर्स्ट पे है, लेकिन मेरा यहाँ पर मिथाइल वाला कॉम्बिनेशन है तो 4 और 3 7 कार्बन है. तो नंबर ऑफ कार्बन चेक करके इग्नोर कर सकते हो. तो एक ही कॉम्बिनेशन बचता है, चेक कर लो. ये मेरा 2 कार्बन का R है और ये 4 कार्बन का R डैश है. दैट वाज रिक्वायर्ड एंड ये हो गया आंसर. ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है असेंडिंग ऑफ सीरीज का भी, बिकॉज इट कन्वर्ट्स अ छोटू अल्काइन इनटू अ बिगर अल्काइन. एंड और स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करोगे तो एक टर्मिनल अल्काइन जो कि एसिडिक है वो नॉन टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट हो रहा है जो कि नॉन एसिडिक. अब इससे कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट होता है कि टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक है एंड दे डू नॉट अंडरगो बीटीएलसी, और नॉन टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं वही बीटीएलसी अंडरगो कर सकते हैं. सो बीटीएलसी वाज बर्च ट्रांस देगा और लिंडलार सिस देगा. Next, Clemenson's reduction of 3-hydroxy cyclopentanone. साइक्लोपेंटेनोन और 3 पे हाइड्रोक्सी है. क्लेमेंसन्स का रिडक्शन जिंक अमालगम कॉन्क HCl के साथ क्या देगा? ऑप्शन 2. यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O है वो तो निकल जाएगा, गिविंग यू अ साइक्लोपेंटेन. दैट इज फाइन. क्वेश्चन है कि विल द OH बी अफेक्टेड और नॉट? आंसर इज यस. एंड इसका रीजन था कि दिस इज एन एसिड सेंसिटिव रिडक्शन. मतलब ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो एसिड से बदल जाता है वो अफेक्ट होगा एंड OH HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरोसाइक्लोपेंटेन देगा. और ये भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है. रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स. किसकी रिएक्टिविटी बात कर रहे हैं? विच मैकेनिज्म? सॉरी, नार. नार.
एंड द मोमेंट यू हैव द नार का रिएक्टिविटी, इसका एक पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है. कैन समवन टेल मी द एंटायर सीक्वेंस? फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, फिर उसके बाद में अरोमेटिक अल्डिहाइड, अरोमेटिक कीटोन, एसिटोफिनोन. फॉर्मल्डिहाइड के बाद एलिफेटिक अल्डिहाइड और उसके बाद एलिफेटिक कीटोन. लेकिन अगर एलिफेटिक और अरोमेटिक दोनों को आपको कंपेयर करना है तो एलिफेटिक वर्सेस अरोमेटिक, विच इज मोर रिएक्टिव? Aliphatic. एलिफेटिक. और अरोमेटिक का रिएक्टिविटी क्यों कम है? तो उसमें प्लस आ रहे हैं. में माइनस आर है, ये तो NHC आइका का पार्ट है ना. तो यहाँ पर ये रेजोनेंस की वजह से रिएक्टिविटी कम. और दूसरा मैंने बताया था दैट नार का रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन. EWG. नहीं, नार रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रो कार्बन की गरीबी. हाँ, सुपर, ऐसे ही बात करने का. गरीबी ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन. तो जितना ये कार्बोनाइल कार्बन गरीब होगा उतना अपने लिए बेटर है, इसीलिए EWG रिएक्टिविटी को बढ़ाता है. ठीक है. इस केस में माइनस आर होने की वजह से यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग डोनेटेड टू द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप. एक्चुअली ये वाला कार्बन जो है कम गरीब हो रहा है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. एंड दैट इज व्हाई एलिफेटिक अल्डिहाइड वाज मोर रिएक्टिव देन द अरोमेटिक. उसके बाद कीटोन में एलिफेटिक कीटोन बेटर है अरोमेटिक से. उसमें भी एक है एसिटोफिनोन और दूसरा है बेंजोफिनोन. बेंजोफिनोन सबसे वर्स्ट है. साथ में EWG नार की रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है. ऑफकोर्स DG नार की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. ये हो गया कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पूरा समरी, अगर नार रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आया तो. ठीक है. Acetone treated with excess ethanol in the presence of hydrochloric acid, product obtained is. कौन सा रिएक्शन? Needle. सॉरी, नहीं, ये कीटल नहीं है. कीटल में वो ग्लाइकॉल यूज करते हैं. जस्ट एसेटल बोल सकते हो या कीटोन के लिए कीटल बोलते हैं, लेकिन कीटल जो है वो बहुत स्पेसिफिकली इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए बोला था. पर ठीक है, थॉट प्रोसेस समझ में आ गया तो नो इश्यूज विद दैट. यू हैव इथेनॉल टेकन इन एक्सेस, तो उसके 2 मोल्स यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है. इस रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या था? To protect the carbonyl. टू प्रोटेक्ट द कार्बोनाइल ग्रुप. तो अगर मेरे पास अल्डिहाइड और दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं और मुझे अल्डिहाइड को रिएक्ट नहीं करवाना है, तो इसको मैं अल्कोक्सी, डाई अल्कोक्सी एसिटल में कन्वर्ट कर देता हूं. और अल्कोक्सी ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये कंपाउंड को स्टेबल और लेस रिएक्टिव बना देता है. फिर अगर हम एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करें तो आई कैन गेट माय ओरिजिनल अल्डिहाइड और कीटोन बैक. That was the application pertaining to this reaction. Answer is option C. Now, this is one of the famous sequence जो पता होना चाहिए. Starting with aniline, you have nano to HCl to give BDC. BDC. So N2Cl फिनाइल के ऊपर आ जाएगा, जिसको हम कंडेंस करके PHN2Cl लिख सकते हैं. फिर कॉपर साइनाइड will convert this to Cyanobenzene. cyanobenzene. Cyano bond reduction will give Amine. wrong. Primary amine. Benzyl. Primary amine, which is benzylamine. And फिर HNO2 नाइट्रस एसिड Alcohol. क्या करेगा? करेक्ट, बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा, CH2OH. और ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी था बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन. आंसर तो डी है. और BDC के
कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है विच यू आर सपोज टू रिमेम्बर। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बीडीसी। सर सी पूछा है इसने। सर सी पूछा है। ओके सॉरी, ऑफ कोर्स सी विल बी बेंजाइलामाइन। Next, starting from propanoic acid, following reaction sequence were carried out. Propanoic acid with SOCl2. X will be Acyl chloride. असाइल propanyl क्लोराइड। chloride, ठीक है, CH3 CH2 COCl. फिर ammonia will convert the acyl chloride to अमाइड। amide. Amide. Amide with bromine KOH. हैप्पी बर्थडे। प्राइमरी अमीन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो CO उड़ा दो, एक कार्बन कम वाला इथाइलामाइन बनेगा and the final product Z would be ethylamine. Hoffman's bromamide degradation concept. X on bromination gives Y, Y with nano to HCl gives Z, Z with boiling ethanol gives you tribromobenzene. अब ये जो ट्राइब्रोमो बोला है इसमें एक्चुअली सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन होना चाहिए। व्हाट इज सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो? 135। ब्रोमो 135। अटैच्ड एट 135। सो अगर मेरे पास ये है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो। अब ये बनाना है बॉइलिंग C2H5OH के थ्रू नैनो टू HCl ब्रोमिनेशन। तो ऑफ कोर्स कौन सा रिएक्शन समझ में आता है? एनिलीन से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बीडीसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए नैनो टू HCl के थ्रू। तो एनिलीन से शुरू किया तो नैनो टू एच सॉरी पहले ब्रोमिनेशन किया। एनिलीन का ब्रोमिनेशन क्या करेगा? एनिलीन ब्रोमीन वाटर ब्रोमिनेशन क्या करेगा? 135 पे ब्रोमीन लगा दे। गड़बड़। 246 पे 135 अभी नहीं बोल सकता तो। एनिलीन का ये कार्बन कार्बन नंबर 1 है तो यहाँ पर जब नेम करेगा तो दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन व्हाइट पीपीटी बनता है। फिर उसका nano to HCl will convert into N2Cl and फिर boiling C2H5OH will convert this into H and finally ये पूरा ग्रुप उड़ जाएगा और अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको तो 135 बोलेगा। तो दिस विल बी फॉर्मेशन ऑफ द 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। करेक्ट। तो कंपाउंड स्टार्टिंग वाला जो X है वो एनिलीन है। अब ये क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। अमाइंस में जो बेसिक स्ट्रेंथ का समरी बताया था उसमें अगर अल्काइल R मिथाइल वाला ग्रुप है तो द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ वाज 213। 213 अमोनिया। 213 एंड अमोनिया तो लीस्ट है। एंड मिथाइल के अलावा अगर इथाइल या कोई भी और अल्काइल है 231। तो 2 तो हमेशा दोनों में पहले आता है बिकॉज दैट बैलेंसेस द सॉल्वेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स। बट यहाँ पर हायर अल्काइल इंडक्टिव डोमिनेट करता है इसलिए 231 का ऑर्डर आता है। फिर इसके अलावा एक जनरल ऑर्डर भी बताया था कि एलिफेटिक अमाइंस आर मच स्ट्रॉन्गर देन द अरोमेटिक एंड द अराइल अल्काइल अमाइन। तो एलिफेटिक सबसे पहले विद अ जनरल ऑर्डर 231 एक्सेप्शन R इक्वल टू CH3। तो इसमें मैंने पहले दो केसेस को समराइज कर दिया, हाँ कि नहीं? यस। तो सारे एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्ग बेसिस है विद द ऑर्डर 231 एक्सेप्ट जब R मिथाइल है तो 213 हो जाता है। उसके बाद अराइल अल्काइल अमाइन जिसको हम बेंजाइल अमाइन बोलते हैं। फिर आता है अच्छा अमोनिया और एनिलीन में कौन बेटर? अमोनिया। 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 एनिलीन सबसे बुरा बेस है। एनिलीन बेस के स्ट्रेंथ में EDG बेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर। इंक्रीज करता है तो उसके इफेक्ट्स के रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आ गया।
अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, जहां पर अगर मिथाइल अल्काइल है तो पूछा था आपको आंसर, तो फर्स्ट। तो ये एक पार्ट है बेसिक स्ट्रेंथ, जो मैंने बोला अमाइंस के चैप्टर से आप रिवाइज कर लो। नेक्स्ट, BDC on reaction with aniline in presence of dilute HCl gives, Third option. and a famous which color dye? Yellow color. येलो कलर की डाई होती है। येलो कलर। ठीक है, इसी में अगर फिनॉल आता तो फिर यहाँ पे OH आ जाता एंड इट वुड हैव बीन Orange color. ऑरेंज डाई। ये दो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट थे। अगेन BDC का सीक्वेंस है, तो पहला N2Cl, फिर Cu2Br2, सेंड मी हियर, ब्रोमो बेंजीन देगा, फिर नाइट्रेशन। अब दोनों ब्रोमो है तो नाइट्रेशन कैन बी डन विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द ब्रोमीन, and bromine makes the ring deactivating and OP directing. मेटा डायरेक्टिंग। OP डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग नहीं, एक्सेप्शन है। तो अब OP डायरेक्टिंग में इस ब्रोमीन का ये पैरा है और ये ऑर्थो है, और इस ब्रोमीन का ये ऑर्थो है और ये पैरा है। इसमें बताओ सबसे वर्स्ट पोजीशन कौन सी है? दोनों के बीच में। बोथ BR के बीच में। तो ये तो रूल्ड आउट है। और ये दोनों पोजीशन देखोगे तो आइडेंटिकल है, तो कहीं पे भी मैं नाइट्रेशन करूं डजेंट मैटर, आई गेट Z एज दिस कंपाउंड। आता है समझ में? Can you repeat this? हाँ, फर्स्ट वाज BDC और ब्रोमोबेंजीन तक समझा? हाँ मेरे पास अब दो ब्रोमीन है ऑन द बेंजीन which will make my ring deactivated and OP directing। तो इस ब्रोमो का ऑर्थो और पैरा, ये स्टार मार्क पोजीशंस है, ये ब्रोमो का, समझा? और ये ब्रोमो का ये वाला स्टार वाला पी पैरा है और ये दोनों ऑर्थो है। तो मैंने पूछा आपको तीनों में से वर्स्ट पोजीशन कौन सा है जहां पे NO2 लग ही नहीं सकता? तो वो है दोनों के बीच में, because when three groups are together it will create lot of repulsions making the compound highly unstable। तो ये तो आपको हमेशा रूल आउट कर देना है। अब बचा आपके पास दो पोजीशन, ये वाला। अब ये BR के ऑर्थो पे है और ये भी BR के ऑर्थो पे ही है, मतलब दोनों पोजीशन आइडेंटिकल होने की वजह से अब कहीं पे भी NO2 लगाओ, you will get the same compound, which is your option number B। समझा? Yes sir. चलो लास्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस। ये हकल्स रूल के बाद 4 अमाइंस के बारे में बेस का स्ट्रेंथ बताया हुआ है। फर्स्ट है एनिलीन, दूसरा है पाइरिडीन, तीसरा है पिपरिडीन और चौथा है पाइरॉल। आंसर वैसे तो स्टैंडर्ड है, बट रीजन के साथ। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बेस, Piperidine. थर्ड है because nitrogen is present on sp3 carbon। उसके बाद Pyridine. क्योंकि नाइट्रोजन sp2 पे तो है लेकिन लोकलाइज्ड। इन दोनों में एनिलीन और पाइरॉल दोनों केसेस में लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन एक्सटर्नल टू द रिंग है, इसका लोन पेयर बेटर अवेलेबल है पाइरॉल से, इसीलिए पिपरिडीन इज द बेस्ट बेस, फिर पाइरिडीन, देन एनिलीन एंड देन पाइरॉल। So but in pyridine there is pi sigma lone pair, so then why won't there be resonance? In pyridine, Yeah, because there's pi sigma lone pair. this is the famous concept जहां पर
पाइरिडीन का ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है बिकॉज दिस पाई बॉन्ड्स आर ऑलरेडी, क्या हो गया, हाँ, द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस। तो ये बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है जहां पर इंटरनल पाई बॉन्ड्स आर रेजोनेंस, बट जो नाइट्रोजन का ऊपर का लोन पेयर है ना, वो यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो दिस इज अ फेमस कॉन्सेप्ट दैट द पाइरिडीन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, वेरेस पाइरोल में यहाँ पर ये एन सिंगल बॉन्डेड है, फिर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ है, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा, बट पाइरिडीन में लोकलाइज्ड है। Got it. Thank you, sir. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्डर विच यू कैन डायरेक्टली रिमेम्बर, स्टैंडर्ड ऑर्डर है ये भी। So, हम्म, can you explain 1 and 4? सॉरी, 1 and 4. 1 and 4 ना। सो 1 में जो नाइट्रोजन है वो रिंग के बाहर है, और 4th में नाइट्रोजन रिंग के अंदर है। तो जो रिंग के बाहर वाला नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर फिर भी एक्सेसिबल है, लेकिन ये नाइट्रोजन रिंग के अंदर है तो इट इज सराउंडेड बाय कार्बन्स, ड्यू टू विच स्टेरिक फैक्टर की वजह से इसका लोन पेयर इज लेस अवेलेबल, इसलिए एनिलीन बेटर है एज कंपेयर टू पाइरोल। Okay, so today's session I have almost covered all the topics: acidic strength, basic strength, physical properties के related question and the thought process, sequence of reaction आया तो क्या करना है, isomers का question आया तो क्या करना है, ठीक है, reactivity के orders है, SN1, SN2, E1, E2, everything I have discussed. Baki, you should know all the organic reaction in depth, then only you'll be able to crack the questions. हो गया है